Okay, so I'll start with wave optics. See, light. Light is a complicated topic. Light is difficult to understand, right? सबसे बड़ा कंफ्यूजन लाइट में यही है कि लाइट है क्या, व्हाट इज दैट which comes from the source, enters our eyes, falls on our retina, and we get sense of vision, right? लाइट के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे आपको. ऑल ऑफ देम मतलब मेनी ऑफ देम आर करेक्ट. लाइक एक तो सबसे कॉमन सा स्टेटमेंट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंस ऑफ विजन. तो उसी को और पहचानना हमको कि लाइट क्या है, व्हाट इज दैट विच इज एमिटेड और मतलब विच कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स एंड फॉल्स ऑन आवर रेटिना एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ विजन. तो क्या है वो? So there are different theories which are given to explain light, right? Different phenomena which light shows. One of them is particle theory. Some theories state that light shows particle nature. The particle nature of light. उसमें से एक फेमस थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. Obviously not important from exam point of view. एग्जाम में किसी पूछते नहीं है व्हाट इज न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी. जस्ट गिव यू अ फील कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ सोच सकते हो आप, पार्टिकल नेचर भी सोच सकते हो. उसके लिए ये थ्योरी दी थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. क्या लिखा था उसमें? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. इफ दिस बी अ सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है. इससे क्या आता है? इससे पार्टिकल्स निकलते हैं. पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट size are emitted, right? These particles travel in all the possible directions. These particles travel in all the possible directions. These particles when fall on our retina, we get a sense of vision. जब वो हमारे रेटिना पे गिरता तो हमको एक विजन आता, right? So as per this theory, light consists of particles. Light consists of particles. जो लाइट आ रही है ना, एज पर दिस थ्योरी, लाइट इज शावर ऑफ पार्टिकल्स. दोस पार्टिकल्स वर नेम्ड एज कॉर्पस्कल्स. पार्टिकल्स वर नेम्ड एज कॉर्पस्कल्स. पार्टिकल्स वर नेम्ड एज corpuscles. They have been given the properties of corpuscles like zero density, perfectly elastic. These are some properties which Newton suggested corpuscles carry. Then perfectly elastic. Okay. So he has given some definitions, some properties of these particles like zero density, then perfectly elastic. बहुत लॉजिकल थ्योरी नहीं थी ये, I'll say completely illogical, but still ठीक है. कुछ ऑब्जर्वेशन से he was able to explain, right? For example, people ask why different colors. So he said different colors were due to what? Different colors were due to different size. Were due to different size of corpuscles. Different size of corpuscles, right? They ask why transparency, why some materials are transparent and some of them are opaque. So he said if distance between the atoms of any substance is lesser than the corpuscle size, then it is opaque, and if distance between the atoms is more than the size of the corpuscles, then it becomes transparent. So people ask why transparent and opaque. So transparent material means what? The material is transparent. Transparent material means what? Distance between
between atoms of transparent material is greater than size of corpuscles. Transparent material. Why anything is transparent? Because distance between atoms of transparent material is greater than the size of the corpuscles. तो जैसे ग्लास है, तो ग्लास इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, राइट? तो उसके एटम्स के बीच में जो स्पेस है, ही सेड कि इज मोर देन द साइज ऑफ द कॉर्पसल, राइट? तो कॉर्पसल के साइज से ज्यादा होता है, राइट? हेलो? So this was the reason why material is transparent and why it is opaque. Anything is opaque like plastic. Obviously plastic भी transparent होता है, but ऐसे समझ लो आप wood है, तो wood is opaque. Why it is opaque? Because he said उनके atoms के बीच का जो spacing है, that is lesser than the size of the corpuscles. तो corpuscles उसको cross नहीं कर पाते. ठीक है, justified भी लगता है, ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ इसमें नहीं लग रही बात, right? Then these particles were emitted from source of light. Particles were, ये तो पहले लिखना चाहिए था, छोड़ो जानो अभी. हाँ, he tried to explain reflection also. कैसे explain किया? He said collision वाला principle है, perfectly elastic होता है, तो जैसे particles का collision होता है उसी टाइप से यहाँ पर अलग ऐसा लिखा हुआ कि corpuscles are repelled by reflecting surfaces. ऐसा लिखा हुआ थ्योरी में, corpuscles are repelled by reflecting surfaces. बाकी अगर रिपेल ना भी करो, आप सिंपल कोलिजन प्रिंसिपल भी अप्लाई करो. आप बॉल मारते हो ऐसे, जिस एंगल पे हिट करते हो वही एंगल पे वो बाउंस करता है, राइट? इफ इट इज परफेक्टली इलास्टिक, राइट? तो I इज इक्वल टू R, वो सारी चीजें वेरीफाई होती थी. तो अगर आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी एज्यूम करके चलोगे, देन ऑल्सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वेरीफाइड. हेलो? तो रिफ्लेक्शन भी जस्टिफाई कर दिया उसने. रिफ्रैक्शन के लिए बस कोशिश करी उन्होंने, लेकिन बराबर आई नहीं बात. क्या ही सेड? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अट्रैक्ट द कॉर्पसल्स. जैसे ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में उनके हिसाब से लाइट को चलना ज्यादा आसान है. डेंसर मीडियम अट्रैक्ट द लाइट कॉर्पसल्स, तो कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये ऐसा जा रहा था, अट्रैक्ट कर दिया तो उसका डायरेक्शन और पाथ चेंज हो जाता है, राइट? बट बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ गया, इस थ्योरी में जरा भी दम नहीं है. क्यों? कॉर्पसल्स कहां से निकल रहे हैं? पार्टिकल से, सोर्स ऑफ लाइट से. तो कितने भी लाइट पार्टिकल्स होंगे, इफ इट इज अ पार्टिकल देन इट शुड हैव सम मास, एंड मास है तो मास उसका कम होना चाहिए किसका? सोर्स का, राइट? बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सोर्स का मास कभी कम नहीं होता. ठीक है, आप बोल रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस रिपेल करते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अट्रैक्ट करते हैं. उनका क्या, जो पार्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्टली रिफ्रैक्ट करते हैं? In fact, every substance partly reflects and partly refracts. भाई हर एक सब्सटेंस जो होता है, ग्लास ले लो आप, ग्लास पार्टली रिफ्लेक्ट भी करता है और पार्टली रिफ्रैक्ट भी करता है, राइट? तो भाई दो चीजें या तो एट अ टाइम अट्रैक्ट करेंगी या तो रिपेल करेंगी. दोनों चीज कैसे कर सकती है? हेलो? हमारी बात समझ क्या बोल रहा हूँ? दो चीजें एट अ टाइम या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे.
दोनों साथ में कैसे कर सकती है भाई? नॉर्थ पोल हमने सुना दे रिपेल ईच अदर, साउथ पोल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों कैसे करेंगे? दोनों नहीं कर सकते ना, राइट? हाँ। तो ये तो एक बड़ा ड्रॉबैक बन गया, ये एक बड़ा ड्रॉबैक बन गया। साइज ऑफ सॉरी मास कम नहीं हो रहा, वो भी एक ड्रॉबैक बन गया। कुल मिला के अच्छा, उसके बाद डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड आपके हिसाब से ज्यादा हो रही है, बट फाइनली जब उनने वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर करने का मेथड सीख लिया, लाइट का स्पीड निकालना सीख गए, तब उनको समझ में आया लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, एयर में उससे कम होती है। जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड कम होती जाती है। किसकी? लाइट की, राइट? ऑब्वियसली थोड़ा इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको मालूम है लाइट की स्पीड मैग्नेटिक एंड कौन सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ लिया है, तो वी नो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बट ठीक है, इतना तो पता है कि ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाती है एज कंपेयर टू एयर। बट एज पर न्यूटन थ्योरी, ग्लास के अंदर, वाटर के अंदर स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, एयर में स्पीड कम होनी चाहिए, राइट? तो दुनिया भर के ड्रॉबैक से कोई मतलब नहीं था इस थ्योरी का, फाइनली ये थ्योरी ड्रॉप हो गई। देन दूसरी पॉपुलर थ्योरी थी इन दैट टाइम, हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी, राइट? लेट्स डिस्कस हाइगेन्स वेव थ्योरी। सो ये सेकेंड थ्योरी थी जो सबसे ज्यादा बाद में सक्सेसफुल बनी, हाइगेन्स वेव थ्योरी। See, he tried to relate light with sound. He tried to relate light with sound. क्या देखा हमने? जैसे साउंड होता है, what is sound? Sound is a form of longitudinal wave, right? Hello. हाँ। जैसे साउंड होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंस ऑफ हियरिंग। वैसे ही उन्होंने लाइट देखा, और लाइट ये भी रियलाइज कर चुके थे सब कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंस ऑफ विजन। ये तो चीज हो ही चुकी थी। फिर जैसे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, उनको लगा शायद ये भी एक फॉर्म ऑफ वेव है। जैसे साउंड में वाइब्रेशंस होते हैं, दोज वाइब्रेशंस प्रोपगेट इन द मीडियम, व्हेन दे फॉल ऑन अवर ईयर ड्रम्स, एक मैकेनिज्म होता है जिसके हेल्प से ब्रेन को कुछ सिग्नल जाता है कि हमने कुछ सुना है। तो उनको लगा शायद लाइट में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, देयर मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, बहुत कम साइज के होते होंगे, या शायद जो भी हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर वाइब्रेशन जैसा देख नहीं पा रहे, बट कुछ होता होगा। तो वाइब्रेशंस ही हैं, ठीक, आर वाइब्रेशंस which propagate, which originate from the source of light, propagate in the medium, and when they fall on our retina, there must be a mechanism on inside our eyes कि जिससे ब्रेन को सिग्नल जाता है ना कि हमने कुछ देखा है। रिलेटेबल लग रहा है ना? साउंड तो आपने खूब पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और जूनियर क्लास में पढ़ा है, साउंड वेव्स, राइट ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कुछ बोलो, आज तो ढेर सारे लोग हैं फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, तो रिलेट हो पा रहा है? साउंड जैसे लग रहा है आपको? वाइब्रेशंस हैं, सोर्स ऑफ साउंड से ओरिजिनेट होते हैं, दे प्रोपगेट इन अ मीडियम, दे फॉल ऑन आवर रेटिना, ऑन ईयर ड्रम्स, एंड ब्रेन को सिग्नल जाता है थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। तो शायद कुछ ऐसा ही लाइट में भी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव which originates from source of light, propagates in a medium, when it falls on our retina, वहां पे एक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, दे कैरी द सिग्नल टू द ब्रेन कि हमने कुछ देखा है। ठीक है, तो ही थॉट लाइट मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट, उसका क्लेम जो था हाइगन का, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, इज फॉर्म ऑफ वेव
which when falls on our retina we get sense of vision. We get sense of vision. अब बहुत सारी मिलती जुलती चीजें थी, बहुत सारी चीजें रिलेट होती है, ठीक है. So light is a form of wave which when falls on our retina we get sense of vision. ऐसा उन्होंने क्लेम किया, right? Light originates from source of light originates from source and propagates in medium. ठीक है, propagates in medium. अब सवाल जवाब चालू हो गए. सबसे पहले लोगों ने पूछा, उस जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पता नहीं था किसी को, राइट? अच्छा, एज पर हिम लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. किसकी थ्योरी में? हाइगेन्स वेव थ्योरी में लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. तो लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव एज पर हाइगेन्स वेव थ्योरी, राइट? तो लोगों ने एक एक सवाल करना चालू किया. सबसे पहला ही सवाल होता है मीडियम का क्या? व्हाट इज मीडियम? सो व्हाई? बिकॉज इन दोज डेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर नॉट नोन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उस जमाने में लोगों को पता नहीं था. ऑल वेव्स विच दे न्यू नीडेड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. जो भी वेव थी उसको मीडियम चाहिए था प्रोपगेशन के लिए, राइट? Let it be sound wave, let it be waves on water surface, let it be waves in string. जहां पे भी waves नोटिस किया, मीडियम चाहिए. मीडियम के बिना waves propagate नहीं कर सकती. The people asked कि how light travels from sun to earth when there is no medium in between. So what Huygens suggested, he proposed existence of a medium. अपने से एक मीडियम एज्यूम कर लिया उसने. लाइट यूजेस ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमिनिफेरस ईथर, व्हाट वाज द लॉजिक स्टोरी बिहाइंड इट आई डोंट नो. हमने एज्यूम कर लिया कि एक मीडियम है. कौन सा? ल्यूमिनिफेरस ईथर विच एग्जिस्ट एवरीवेयर. विच एग्जिस्ट ईथर as medium for its propagation. Medium for its propagation. क्या? Light uses luminiferous ether as medium for its propagation. ठीक? फिर ether है क्या? Ether is present everywhere. Ether is present everywhere. That is inside glass, inside water, in our body, or it is present in vacuum also, right? I can suggest it exists everywhere. It's present everywhere, right? Even in vacuum. And light waves use that as a medium for their propagation. ठीक है? तो उन्होंने क्या assume किया? Ether is present everywhere. Ether is present everywhere, even in vacuum, and light uses ether, luminiferous ether, as medium for its propagation. अच्छी बात है. फिर क्या? Then luminiferous ether is perfectly transparent. Ether is perfectly transparent. तो वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके लिए हमको कभी पता नहीं चल पा रहा उसका, राइट? तो ये है कहानी किसके? मीडियम की. तो चलो, वो बात और है कि यही बाद में सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना. इसी वजह से थ्योरी ड्रॉप भी हो गई. फिर बाद में ईथर जैसी कोई चीज मिली नहीं, राइट? पीपल डिड नॉट बिलीव कि मतलब बिना मीडियम के कोई वेव चल ही नहीं सकती. अगर आपने 11th में 9th में वेव्स पढ़ा होगा अच्छे से, तो
वेव्स में क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस वो मीडियम पार्टिकल्स में ट्रांसफर होता जाता है। अब जब मीडियम ही नहीं है तो फिर वेव कहाँ से बनेगी, राइट? तो मीडियम तो चाहिए था, तो वेव वाली कहानी तो पहले ही रिजेक्ट हो गई थी। वो बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर किया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर समझ में आया कि ये एक स्पेशल वेव्स हैं, दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, तब जाके फिर ये वेव थ्योरी को रिकॉग्निशन मिला जाता है। अदरवाइज ये मीडियम का प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व नहीं हुआ। he said he proposed existence of some hypothetical medium, मतलब उसने कुछ मीडियम एज्यूम कर लिया, ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब लोगों ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ऐसा कुछ मीडियम वहां पे मिला ही नहीं, नहीं मिला तो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, राइट? वेरी लेट व्हेन पीपल केम टू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, वहां पे जाके उन्होंने फिर इसको कंसिडर किया एज अ वेव। तब तो चला हाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, राइट? ठीक है, तो ये कहानी हो गई मीडियम की। अब क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि भाई डिफरेंट कलर्स क्यों है, भाई डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो व्हाट ही सेड, जैसे साउंड है, साउंड में अलग अलग क्वालिटी होता है कि नहीं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड इज है। अगर आपको याद हो तो 20 हर्ट्ज के नीचे आपको सुनाई नहीं देता, राइट? फिर 20 हर्ट्ज से बढ़ते 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 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज ये आपको सुनाई देता है। दिस इज ऑडिबल रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी कैन हियर। बट जो सुनाई देता है उसमें भी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखोगे आप, बहुत बेस इसमें होता है, मतलब मैं कैसे बोलूंगा, श्रिल नहीं होता है, पतली आवाज नहीं होती, मोटी आवाज होती है। कब? जब ये फ्रीक्वेंसी बहुत लो। इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो क्या होता है, श्रिल आता है, श्रिल आता है, मतलब पतली आवाज हो जाती है, नहीं? फीमेल वॉइस है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, whereas मेल वॉइस है लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच, राइट? हाँ, तो व्हाट ही सजेस्टेड, हाँ, डिफरेंट कलर्स क्यों है, तो उसने रिलेट किया फ्रीक्वेंसी से। एंड आज हमको मालूम है, बिल्कुल सही बोला उसने, राइट? ही सेड डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ही प्रपोज different colors, different colors are due to different frequencies. What? Different colors are due to different frequencies. ठीक है? हाँ, हेलो, हाँ, मतलब लो फ्रीक्वेंसी होता है तो वो रेड कलर दिखाई देता है, नेचुरली ऐसा है, राइट? जैसे सोर्स है, सोर्स से वेव्स आ रही, अगर बहुत सारी वेव्स पर सेकंड रिसीव होंगी आपको, क्या इफ मेनी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो भी है वेव्स, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो तो बात की बात, जो भी वेव्स हैं, तो अगर एक सेकंड में बहुत सारी वेव्स, सॉरी कुछ वेव्स आपके पास आ रही, अगर बहुत कम है तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की जहां से आपको दिखने लगेगा, तो अगर कम आ रही हैं, दिख रहा है बट कम है, तो वो रेड कलर का अपीयर होता है। नंबर ऑफ वेव्स रिसीव पर सेकंड अगर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है। बड़ा स्ट्रेंज है, जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, और अच्छे समझ में आएगा कि जब नंबर ऑफ वेव्स रिसीव बाय आवर आईज पर सेकेंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, पर सेकेंड जब इंक्रीज होती जाती है तो उसका अपीयरेंस चेंज होने लगता है, वो रेड से फिर ऑरेंज, येलो, ब्लू की तरफ फिर शिफ्ट होने लगती है। जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो वो बहुत सारी वेव्स अगर पर सेकेंड रिसीव होंगी तो इट अपीयर्स वायलेट, नहीं, और ज्यादा वायलेट से भी ज्यादा होगी तो फिर वो फिर से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो नहीं, एकदम रिलेटेबल है। जैसे साउंड की कहानी थी, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर फिर सुनाई नहीं देता किसी को, राइट? इनफैक्ट नाम भी ऐसे रखा हुआ है, इसके नीचे इंफ्रासोनिक, इसके नीचे अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे भी है इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट। हाँ, तो हाँ, तो बिल्कुल वैसे रिलेट हो रही है चीजें,
तो जैसे साउंड में होती कहानी वैसे लाइट की भी वैसे चल रहा है। तो इसके लिए लोगों को थोड़ा सा बिलीव होने लगा, बट ये मीडियम का ही चक्कर था जिसकी वजह से थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अब लोगों ने बोला एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, कलर आपने बता दिया, रिफ्लेक्शन समझाओ कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये सब तो बहुत आसान था समझाना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट समझाया। उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस जो पार्टिकल्स में नहीं हो सकता। फिर एक और फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, जो पार्टिकल्स में नहीं हो सकता। देन एक फिनोमेना है पोलराइजेशन। तो ये सारे फिनोमेना हमारे सिलेबस में है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन। इस बार के एग्जाम में शायद पोलराइजेशन नहीं रहेगा, पोलराइजेशन हटा दिया है, बट वैसे पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रहता है। हर बार एक क्वेश्चन मतलब फ्रीक्वेंटली आता था क्वेश्चन पोलराइजेशन से। ओके, हाँ हेलो, हाँ। तो ये सारे फिनोमेना आपके सिलेबस में है समझाने के लिए। तो लेट मी बिगिन विद, मतलब पोलराइजेशन छोड़ दो तो बाकी 5 फिनोमेना तो है ही। तो एक लाइन से शुरू करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। तो ये सारे फिनोमेना हाइगन ने एक्सप्लेन किए थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उनको जस्टिफाई किया था। तो लेट्स